Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss our new topic, that is events in sexual reproduction. Events in sexual reproduction. So, the sequential events that take place during sexual reproduction can be grouped into the three categories. The first is the pre-fertilization events, second is the fertilization events, and third is the post-fertilization events. Sequential events can be divided into the three categories. The first is the pre-fertilization events, second is the fertilization events, and third is the post-fertilization events. So, in this video, we will discuss about pre-fertilization events. Pre-fertilization events are that type of the events which take place before fertilization. All those events of sexual reproduction that take place before fertilization. Pre means before, fertilization means fertilization. So, here the name indicates all those events of sexual reproduction take place before fertilization. And in the case of the pre-fertilization, mainly two events are there. The first is the gametogenesis and the second is the gamete transfer. The first is gametogenesis. What is the gametogenesis? The gametogenesis is the process of the formation of the gametes. The process of formation of the gametes is known as the gametogenesis, and the gametes are of two types, male gametes and female gametes. The gametes produced by the male body are known as the male gametes, and produced by the female body are known as the female gametes. So here the definition: the process of formation of the male and female gametes or haploid cells, and these are the haploid cells, is called the gametogenesis. And the gametogenesis takes place by both the methods, meiosis as well as mitosis. In the case of the human beings, the gametogenesis takes place by the meiosis. Meiosis is also known as the reduction division or meiotic division. ओके सो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपके सिक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं वो तीन कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं. पहली कैटेगरी होती है आपकी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, सेकंड कैटेगरी होती है आपकी फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, एंड थर्ड कैटेगरी होती है आपकी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं ये वो सारे इवेंट्स हैं जो आपका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से पहले क्या होते हैं आपके पहले होते हैं. ठीक है. और ये क्या होते हैं आपके दो तरह के होते हैं. पहला होता है आपका गैमेटोजेनेसिस और दूसरा होता है आपका गैमेट ट्रांसफर. ऑब्वियसली अगर गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो वो आपका फीमेल बॉडी में ट्रांसफर भी होगा ताकि उसका क्या हो सके, आपका फ्यूजन हो सके. तो दो आपके इवेंट्स हैं, पहला गैमेटोजेनेसिस है, दूसरा आपका गैमेट ट्रांसफर है. गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को आपका गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है. और जो गैमेट्स होते हैं, दीज आर द हैप्लॉइड सेल्स. हैप्लॉइड सेल्स मीन्स दे कंटेन ओनली द हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोजोम एज कंपेयर टू द पेरेंटल बॉडी. यानी कि पेरेंट बॉडी में जितने भी क्रोमोजोम्स होंगे आपके, पेरेंट सेल में जितने भी क्रोमोजोम्स होंगे आपके, तो जो आपका हैप्लॉइड सेल्स होती हैं उन सेल्स में आपका पेरेंट सेल्स के कंपैरिजन में आपके आधे नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, आपके पाए जाते हैं. सपोज इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, इफ द पेरेंटल सेल कंटेन 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम देन द हैप्लॉइड सेल कंटेन ओनली n नंबर ऑफ द क्रोमोजोम्स. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट गैमेट्स आर द गैमेट्स क्या होते हैं आपके, गैमेट्स आर द हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस. सिंपल है आपका कि जो आपके हैप्लॉइड सेल्स आपका गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं उनको क्या बोला जाता है, आपका गैमेट्स बोला जाता है. एंड द गैमेट्स आर ऑफ टू टाइप्स. गैमेट्स आर ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट टाइप ऑफ द गैमेट इज द होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स. एज द नेम इंडिकेट, होमो मीन्स सेम, गैमेट्स मीन्स gametes, iso means same, gametes means gametes. Okay, when the male and the female gametes are similar, when male and female gametes are similar in appearance and it is not possible to differentiate between them. Okay, when male and female gametes are similar in the appearance, it means that in the outer appearance, not in the internal. Okay, when they are similar in the external morphology and it is not possible to differentiate between them, these are called the homogametes or isogametes. Example is the algae. In the case of the algae, such as in the case of the cladophora, in the case of the chlamydomonas, the gametes are formed and these gametes are similar. Male gamete as well as female gamete, both the gametes are similar to each other morphologically, not the anatomically. ओके, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्या होते हैं, आपके सेम होते हैं. उनमें आपका फ्लैजला दोनों में पाया जाता है, दोनों मोटाइल होते हैं आपके. ओके, और हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा आपका मेल गैमेट है और कौन सा आपका फीमेल गैमेट है. तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में जो गैमेट्स होते हैं, दीज गैमेट्स आर कॉल्ड द आइसोगैमेट्स और होमोगैमेट्स. नाउ द टर्म ऑफ द हेटेरोगैमेट्स.
Heterogametes are that type of the gametes in which male and the female gametes are morphologically dissimilar. Okay, we can differentiate them morphologically. So these type of the gametes are known as the heterogametes, like in the case of the fungus and in the case of the humans and other animals. तो हम कह सकते हैं आपके कि जब हम जो हेटेरोगैमेट्स क्या होते हैं आपके, जब हमें गैमेट्स दिए जाते हैं और उनको हम मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये आपका मेल गैमेट है और देख करके कि ये आपका मेल गैमेट है और दूसरा क्या है आपका फीमेल गैमेट है। तो इस तरह जो आपके गैमेट्स में डिफरेंशिएशन हो सकता है वो गैमेट्स क्या कहलाते हैं आपके हेटेरोगैमेट्स कहलाते हैं। तो in this condition, in the condition of the heterogametic condition, in the case of this type of the condition, what happen, the male gamete is known as the entheozoid or sperm and the female gamete is known as the egg or ovum. Female gamete को आपका egg और ovum बोला जाता है and the male gamete is known as the entheozoid or sperm. In the case of the human, we can take the example of the human. In the case of the human, the male gamete is known as the sperm and the female gamete is known as the ovum. It is very well known. And here are the three diagrams. Okay, the first condition indicates the isogametes of the cladophora. Cladophora is the algae. Cladophora क्या होता है आपका, एक algae होता है. In this case we can see that one gamete is here and second gamete is here. There are two types of the gametes. Okay, but we cannot say which one is the male gamete and which one is the female gamete. अगर हम इसको indicate करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि आपका this one is the male and this one is the female, but द मॉर्फोलॉजिकल वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट दैम. हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं. अगर हमें बिना इंडिकेशन के बोला जाए कि कौन सा मेल गैमेट है कौन सा फीमेल गैमेट है तो हम नहीं बता सकते. क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली ये क्या होते हैं आपके सेम होते हैं. आप देख सकते हैं कि दोनों ही क्या हैं आपके मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं. दोनों ही क्या हैं आपके मोटाइल हैं आपके. ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड एग्जाम्पल. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द गैमेट्स इन द केस ऑफ द फ्यूकस. ओके, फ्यूकस के केस में आपके ये गैमेट्स हैं. सो वी कैन सी दैट this is the female gamete and this one is the male gamete. ये आपका female gamete है और आपका ये क्या है आपका male gamete है. Okay, and we can see that the male gamete is very small in comparison to the female gamete. So this is the example of this is also a algae. ये भी क्या होता है आपका एक फ्यूकस भी क्या है आपका एक algae होता है. सारे एल्गी आपके होमोगैमेट्स शो नहीं कर सकते हैं. कुछ एल्गी आपके क्या करते हैं आपका हेटेरोगैमेट्स भी क्या करते हैं आपका शो करते हैं. तो फ्यूकस भी आपका एक एल्गी होता है आपको पता है. लेकिन फ्यूकस के केस में आप देख सकते हैं कि फीमेल गैमेट यानी कि जो ओवम है आपका इट इज़ वेरी लार्ज इन स्ट्रक्चर इन कंपैरिजन टू द मेल गैमेट. मेल गैमेट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज एंड द मेल गैमेट इज मोटाइल बिकॉज इट कंटेन द फ्लैजिला and the female gamete is not motile, it is stationary. Okay, and here this is the condition of the gametes in the case of the humans. Okay, in the case of the homo sapiens, here the female gamete is the ovum and the male gamete are the sperms, and we can see that the ovum is very large in comparison to the female gametes. Okay, in comparison to the sperms, but the sperms contain the flagella for the movement. Okay, for the movement they contain the flagella, and we can say that in the case of the female gamete is large because it contain the reserve food material also, therefore it is large in structure. Okay, so these are the three diagrams for the gametes. Now coming to the next point, the cell division during the gamete formation. Cell division during the gamete formation. First of all, we will discuss about the cell division. What do you understand by the cell division? The sequential process which takes place in the cell. Okay, which during which the cells divide into the two or more daughter cells. Okay, the process in which the cells divide into two or more daughter cell is known as the cell division. It is also a sequential process. आपने 11th में पढ़ा होगा कि आपकी sequential process होती है. एम फेज आती है आपकी, ग्रोथ फेज आती है, प्रो फेज आती है, बहुत सारी आपकी फेजेज आती हैं इसमें. तो सेल डिवीजन कितने तरह का होता है आपका? दो तरह का होता है. द फर्स्ट टाइप ऑफ द सेल डिवीजन इज द माइटोटिक सेल डिवीजन. माइटोटिक. ओके, माइटोटिक सेल डिवीजन इज ऑल्सो नोन एज द somatic cell division, and the second type of the cell division is the meiotic cell division, and the meiotic cell division is also known as the reduction division. पहले इसको हम समझ लेते हैं कि हम इसको somatic या reduction division क्यों बोलते हैं. वैसे आप लोगों को पता होगा क्योंकि 11th में हमने इस चीज़ को पढ़ा है. The mitotic cell division is that type of the cell division in which the cells divides and form two daughter cells identical to the parent cells in the number as well as morphology. ओके, तो क्या होता है आपका माइटोटिक सेल डिवीजन में क्या होता है आपका एक सेल डिवाइड होती है और डिवीजन के बाद वो केवल दो ही डॉटर सेल क्या करती है आपकी फॉर्म करती है. और जो दो डॉटर सेल आपकी फॉर्म करती हैं उनमें जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं वो आपका पेरेंटल सेल के क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं. इसीलिए इस डिवीजन को आपका इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है. और मैंने एक और टर्म बोला था आपका सोमेटिक डिवीजन. इसको सोमेटिक डिवीजन इसलिए बोला जाता है बिकॉज दिस टाइप ऑफ द डिवीजन टेक्स प्लेस इन द सोमेटिक सेल्स. सोमेटिक सेल्स क्या होती हैं? जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या करती हैं आपका पार्टिसिपेट करती हैं. नाउ द सेकंड इज द मियोटिक
or reduction cell division. Meiotic and reduction cell division is that type of the cell division in which the parent cell divides and form 4 daughter cell. वहाँ कितने थे आपके? 2 थे, यहाँ कितने आपके? 4 हैं. And it form 4 daughter cells. And the most important point is that in the case of the meiotic cell division, the daughter cell contain the half number of the chromosome एज कम्पेयर टू द पेरेंटल सेल. पेरेंटल सेल के कंपैरिजन में, यानी कि जिस सेल से आपकी डॉटर सेल फॉर्म हो रही हैं उसके कंपैरिजन में जो डॉटर सेल्स होती हैं उनके पास जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं आपके वो आधे होते हैं. इसीलिए इसको रिडक्शन डिवीजन भी बोला जाता है. रिडक्शन मीन्स कमी हो जाना आपका, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? आपका रिडक्शन डिवीजन भी बोला जाता है. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द जर्मिनल डिवीजन बिकॉज दिस टाइप ऑफ द डिवीजन टेक्स प्लेस इन द जर्मिनल सेल्स, यानी कि जो आपकी जर्म सेल्स होती हैं, आपकी जर्मिनल एपिथेलियम होते हैं आपके, उसमें क्या होता है? आपका ये डिवीजन आपका पाया जाता है. तो as we know that there are two types of the organisms in the earth, mainly in the case of the plants. plants के केस में क्या होता है? आपके कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होते हैं? आपके हैप्लॉइड होते हैं. हैप्लॉइड मीन्स दे कंटेन ओनली एन नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स. ओके, सो व्हाट हैपन टू देम? तो उनके केस में क्या होगा आपका? जब डिवीजन होगा आपका, यानी कि जब आपका गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस होगी, तो कैसे आपका कौन सा डिवीजन होगा? ऑब्वियसली क्योंकि आपकी पेरेंटल बॉडी क्या है? आपकी हैप्लॉइड है. हैप्लॉइड पेरेंटल बॉडी इज देयर, देयरफॉर द डिवीजन इज द सोमेटिक डिवीजन. कौन सा डिवीजन होगा आपका? सोमेटिक डिवीजन होगा. क्यों होगा? क्योंकि पहले से ही आपके हैप्लॉइड है और आपको पता है कि जो गैमेट्स होते हैं वो भी हैप्लॉइड होते हैं. अगर आपका हैप्लॉइड कंडीशन में आपका अगर कौन सा मेयोटिक डिवीजन हो जाएगा तो एन के भी n/2 हो जाएंगे आपके क्रोमोसोम, जो कि आपका नहीं हो सकता, जिससे आपकी क्या होगी? जो स्पीसीज की स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? आपकी खत्म हो जाएगी. तो इन द case of the organism where the parental body is haploid, the mitotic division takes place. यानी कि माइटोटिक डिवीजन के थ्रू क्या होता है? आपका गैमेट का फॉर्मेशन होता है. कौन से डिवीजन से गैमेट का फॉर्मेशन होता है? आपका माइटोटिक सेल डिवीजन से गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. इसको रिमेंबर रखना है, इसको याद रखना है. एंड दिस टाइप ऑफ द सेल डिवीजन फॉर द गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ द मोनेरास, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स. एल्गी, फंजाई एंड ब्रायोफाइट्स आर द लोअर प्लांट्स. लोअर प्लांट्स हो गए आपके, मोनेराज हो गए आपके. एनिमल के केस में ये आपका नहीं होता है बिकॉज इन द केस ऑफ द एनिमल बॉडी द बॉडी इज डिप्लॉयड मेनली. ओके, तो इनके केस में क्या होता है? आपका जो पेरेंटल बॉडी होती है वो आपकी हैप्लॉइड होती है, जिसकी वजह से आपका जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो कौन से डिवीजन से होती है? आपकी माइटोटिक सेल डिवीजन से होती है. अगेन आई एम रिपीटिंग, माइटोटिक सेल डिवीजन इज दैट टाइप ऑफ द सेल डिवीजन इन विच द पेरेंट सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म 2 daughter cell and each daughter cell contain the haploid number of the chromosome. ओके, यस. तो मैंने आपको बताया कि माइटोटिक डिवीजन होगा आपका जब हैप्लॉइड बॉडी में, तो वो आपके क्या करेगा? आपका हैप्लॉइड बॉडी है, आपके एन क्रोमोसोम है, तो आपका एन ही क्रोमोसोम आपका डॉटर सेल भी कंटेन करेंगी, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है? आपका पेरेंटल बॉडी, जो पेरेंटल सेल है और जो डॉटर सेल है, उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं आपके? वो इक्वल होते हैं. नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, the organism belonging to the pteridophytes. Pteridophytes are also known as the snakes of the plant kingdom. Okay, remember snakes of the plant kingdom. Bryophytes को बोला जाता है आपका amphibians. Pteridophytes को बोला जाता है आपका snakes of the plant kingdom. Gymnosperm means the naked plants, यानी कि जो सीड्स इनमें प्रोड्यूस होते हैं वो आपके कवरिंग से क्या नहीं होते हैं? आपके कवर्ड नहीं होते हैं. एंजियोस्पर्म्स यानी कि क्या हो गया? आपके फ्लावरिंग plants. तो in the case of this type of the plants, pteridophyte, gymnosperms and angiosperms and most of the animals, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एनिमल होता है, एनिमल के केस में जो बॉडी होती है वो मेनली क्या होती है? आपकी डिप्लॉयड होती है. इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स, यानी कि हमें भी इंक्लूड करते हुए इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स, वी हैव द डिप्लॉयड parental body. In all these cases the parental body is diploid, so the gamete formation takes place by the process of the meiotic division. meiotic division means आपका क्या होगा? जब डिवीजन होगा तो जो आपकी डॉटर सेल्स बनेंगी आपकी 4 बनेंगी एक डिवीजन के बाद, और उसमें क्या होगा? जो क्रोमोसोम्स के नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे? आपके रिड्यूस हो जाएंगे, आपके हाफ हो जाएंगे आपका पेरेंटल सेल के कंपेरिजन में. क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आपको पता है कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स देयर इज अ गैमेट ट्रांसफर प्रोसेस एंड आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन इज देयर. व्हेन द फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी इज देयर, ड्यूरिंग आफ्टर दैट द जाइगोट विल फॉर्म. जब आपका फर्टिलाइजेशन होगा तो ये दोनों गैमेट्स आपके, एक हैप्लॉइड है दूसरा भी हैप्लॉइड है, एन है आपका, मेल भी एन कंटेन करेगा, फीमेल भी एन कंटेन करेगा, तो ये क्या बना देंगे? आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? आपका जाइगोट बोला जाता है. तो अगर क्या होगा? आपका हैप्लॉइड कंडीशन में आपके गैमेट्स फॉर्म नहीं होंगे तो आपका ये क्या नहीं हो सकता? आपका स्टेबिलिटी यहाँ पर को रिड्यूस हो जाएगी. इसीलिए आपका अगर सपोज करो कि अगर डिप्लॉयड ही फॉर्म होते, 2n एंड 2n फॉर्म होते, तो क्या बन जाता? आपका 4n बन जाता, जो कि नहीं हो सकता है. तो इसीलिए इनकी बॉडी में क्या होता है? आपका कौन सा डिवीजन होगा? आपका दैट इज द मेयोटिक डिवीजन, और वी कैन से दैट रिडक्शन डिवीजन इज देयर. और जो आपके डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन दैट केस specialized cells are there and these cells are called the gamete mother cell or myocytes. Gamete mother cell and myocyte, this point is very important. Okay,
मियोसाइट्स एंड गैमिट मदर सेल्स आर देयर, क्योंकि आपका मियोटिक डिवीजन के अंदर जाती हैं सेल्स जो गैमिट मदर सेल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो गैमिट का फॉर्मेशन करती हैं, और हम इनको मियोसाइट्स इसलिए बोल रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मियोटिक डिवीजन होता है, वो आपका मियोटिक डिवीजन के अंडर जाती हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, आपका मियोसाइट्स बोला जाता है। एंड दीज सेल्स आर डिवाइड्स एंड प्रोड्यूस द गैमिट्स। तो ये आपका गैमिट फॉर्मेशन की प्रोसेस हो गई आपका। अगर पेरेंटल बॉडी आपकी हैप्लॉइड है, जैसे कि आपके लोअर प्लांट्स में होता है, मोनेराज में होता है, फंजाई में होता है आपका, तो उसके केस में आपका कौन से डिवीजन से होगा, आपका माइटोटिक डिवीजन से आपका क्या होगा, आपका गैमिट फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर आपकी पेरेंटल बॉडी डिप्लॉइड है तो आपके गैमिट का फॉर्मेशन होना है और गैमिट्स आपके हैप्लॉइड होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, इन दैट टाइप ऑफ द कंडीशन व्हाट हैपन, द डिवीजन इज द meiotic division and the cells undergo the meiotic division are known as the myocytes or gamete mother cell. Okay, done. Now next is the gamete transfer. So it is very simple process because after the formation of the gametes should come in the physical association with each other. क्यों होता है ऐसा आपका, गैमेट फॉर्मेशन तो हो गया, अगर गैमेट फ्यूजन ही नहीं होगा तो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आपका रिजल्ट आएगा ही नहीं। तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स शुड कम इन फिजिकल एसोसिएशन with each other so that they can fuse with each other to form zygote, ताकि वो क्या कर सके, आपका जाइगोट का फॉर्मेशन कर सके, क्योंकि जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द न्यू लाइफ। जाइगोट ही क्या होती है, आपकी न्यू लाइफ की फर्स्ट सेल होती है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जाइगोट इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट सेल ऑफ द न्यू लाइफ। न्यू लाइफ की आपकी फर्स्ट सेल क्या होता है, आपका जाइगोट होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो इन द केस ऑफ द सम एल्गी एंड फंजाई, आपको पता है कि एल्गी और जो फंजाई होते हैं आपके, अभी हमने बात की थी आपकी कि इन द केस ऑफ द आइसोगैमेट्स देयर इज वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इन द केस ऑफ द एल्गी एंड द फंजाई बोथ मेल एज वेल एज फीमेल गैमेट्स आर मोटाइल, जैसा कि अभी मैंने आपको क्लैडोफोरा में दिखाया था। ओके, कि उसमें जो गैमेट्स आपके फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, आपके आइडेंटिकल होते हैं, दोनों के पास क्या होते हैं, आपके फ्लैजला होते हैं आपके मूवमेंट के लिए, तो दोनों के दोनों क्या होते हैं, आपके मोटाइल होते हैं। Whereas in the majority of the organisms, male gametes are motile and female gametes are stationary. अगर हम बात करें किसकी, आपका हेट्रोगैमेटिक कंडीशन की बात करें, तो उसके केस में क्या होता है, आपका जो मेल गैमेट होते हैं वो तो आपके मोटाइल होते हैं, बट द फीमेल गैमेट्स आर स्टेशनरी। फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, आपके स्टेशनरी होते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इन द केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स द एग आर प्रोड्यूस इनसाइड द फीमेल बॉडी। एग्स क्या होते हैं, आपके फीमेल बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, वो वहाँ से कहीं को भी माइग्रेट नहीं करते हैं। बट द मेल प्रोड्यूसेस द स्पर्म, मेल क्या करता है, आपका स्पर्म्स का प्रोडक्शन करता है, आपका मेल प्रोड्यूसेस द स्पर्म्स एंड दीज स्पर्म्स हैज टू ट्रेवल, उनको क्या करना पड़ता है, आपका ट्रैवल करना पड़ता है। जब आपका वो आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो उनको आपका फर्टिलाइजेशन की साइड तक क्या करना पड़ता है, आपका मूवमेंट करना पड़ता है, आपका एक डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है, जिसके लिए क्या होते हैं आपके द मेल गैमेट्स आर मोटाइल इन स्ट्रक्चर। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। In the case of the simpler plants such as the algae, bryophytes, pteridophytes, water is very essential for the process of the reproduction, और वी कैन से दैट फॉर द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। इनके केस में आपका वाटर क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वाटर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, वाटर की हमें ज़रूरत होती है ताकि वो आपके क्या कर सकते हैं, माइग्रेट कर पाए। जो आपका मेल जो आपका क्या है, आपका गैमेट है, वो माइग्रेट कर पाए। कहाँ तक माइग्रेट कर पाए, आपका फीमेल गैमेट के पास तक पहुँच पाए, ताकि उनके बीच में फ्यूजन हो सके और आपका गैमेट का फॉर्मेशन हो सके। बट इन द केस ऑफ द अगर हम बात करें किसकी, आपके हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो जैसे अगर हम बात करें किसकी, आपके फ्लावरिंग प्लांट्स की या सीडेड प्लांट्स की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द सीडेड प्लांट जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, देन द मेल गैमेट हैव टू रीच द फीमेल गैमेट। ओके, इन द केस ऑफ द हायर प्लांट्स द मेल गैमेट हैव टू रीच द स्टिग्मा ऑफ द ओवरी। स्टिग्मा में उसको क्या करना पड़ता है, आपका पहुंचना पड़ता है। तो वो कैसे पहुंचेंगे, यहाँ तो ठीक है आपका इन द लोअर ऑर्गेनिजम्स, इन द लोअर प्लांट्स वी कैन से दैट वाटर इज द मीडियम फॉर द मूवमेंट ऑफ द गैमेट्स। वाटर आपका मीडियम होता है आपके मूवमेंट के लिए। आपका मेल गैमेट क्या करेगा, आपका वाटर की हेल्प से, वाटर करंट की हेल्प से क्या करेगा, आपका फीमेल गैमेट तक पहुंच जाएगा फ्यूजन के लिए। लेकिन जो आपके हायर प्लांट्स हैं उनके केस में तो ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज इन द केस ऑफ द हायर प्लांट द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड वे, इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे। तो वहाँ पर कौन सी प्रोसेस होती है जिससे आपका जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक पहुँचता है। तो उसके लिए क्या होता है, आपका एक प्रोसेस होती है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द पॉलिनेशन। हाँ, तो मैंने आपको बताया था पॉलिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द pollen grains आर फॉर्म्ड by the process of the gametogenesis and the pollen grains are unit for the male sex cell.
ओके तो pollen grains reach to the stigma of the ovary by the process of the pollination. Pollination क्या होता है आपका? Pollination is the process in which the male gametes transfer to the female gametes. In bisexual plants, if the plant is bisexual, then the process of the pollination is the self pollination. Self pollination, and in this way this process is very easy, क्योंकि आपका एक जो फ्लावर है वो आपका बाइसेक्सुअल है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी वही है आपका एक ही फ्लावर में और फीमेल भी वही है, तो उसको आपका मूव करने में, वहाँ तक ट्रांसफर होने में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है. Whereas in the case of the unisexual plants, अगर plants आपका unisexual है तो या flower आपका unisexual है, then the process is known as the cross pollination. तो उस टाइम पे आपका कौन सी प्रोसेस होगी? आपका क्रॉस पॉलिनेशन की क्या होगी? आपकी प्रोसेस होगी. तो ये तो हो गई बात आपकी प्लांट्स के केस में. नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट इन द केस ऑफ द एनिमल्स, एज वी नो दैट द मैक्सिमम एनिमल्स और आर द यूनिसेक्सुअल. क्या होते हैं आपके? यूनिसेक्सुअल होते हैं. तो in the case of the unisexual animals, organisms must evolve special mechanism for gamete transfer. For example, copulatory organs, penis in mammals. क्या होता है आपका? In the case of the animals, there is a copulatory organ. क्या होते हैं आपके? copulatory organs पाए जाते हैं, and these copulatory organ help in the transfer of the male gametes inside the female reproductive system. For example, penis in the case of the mammals. In the case of the mammals, penis is there, and with the help of the penis, the male organism introduce their sperms inside the vagina of the female organism. Okay, so this is the process, or we can say that this is the process of the gamete transfer in the case of the unisexual animals. So आज की वीडियो में इतना ही. आज हमने पढ़ा आपका इवेंट्स पोस्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स.